Good evening, everybody. I'm Sayukta, your host for today's live from All About Skin Allergy team. I'm sure all of you must be keeping good health. Today, we are going to discuss about our skin health with focus on urticaria or hives, which we or our near and dear ones would have encountered at some point of time in their lives. Urticaria is characterized by a round rash on the skin that itch intensely. It may be due to chemicals in certain food, allergy to certain medications, insect stings, sunlight, and sometimes the cause is unknown. As per study published in Indian Journal of Dermatology, Venereology, and Leprosy, more than one-fifth of the population suffer urticaria at one time. 60% of patients are in the age group of 20 to 40 years. Incidences is higher in older age group. Urticaria is classified as acute and chronic, but the most important part is not to ignore it, and doing self medication can actually worsen its symptoms. Consult your nearby qualified skin specialist immediately for an early remission. In today's digital world, it's a boom or blessing if we can get to hear from an expert dermatologist online about urticaria and its types, how we can prevent it, kind of test required for its diagnosis, and right treatment and management approach for an early relief. So today we have with us renowned dermatologist Dr. Akriti Gupta live from Jivisha Clinic, best in skin and child care, and she will educate us more about urticaria and its management. Dr. Akriti Gupta is a dermatologist at Jivisha Clinic, Delhi, and has an experience of 6 years in this field. She completed MBBS from Rajiv Gandhi University of Health Sciences in 2012, DDVL from Saurashtra University, Gujarat in 2017, and fellowship in aesthetic medicine from Institute of Laser and Aesthetic Medicine in 2017. She is a member of Medical Council of India, MCI, and Delhi Medical Council, DMC. Some of the services provided by the doctor are sunburn treatment, permanent acne solutions, skin treatment, wrinkle treatment, and scar treatment. And today we'll talk about urticaria and its management with Dr. Akriti Gupta. A very warm welcome to you, Dr. Gupta. Hope you are doing good. Yeah, hello Sayukta. Yeah, hi, I'm doing good. Sorry for my That's voice. great. I have some because of this summer. I've like drank some cold water, so my voice is not so clear. But I'll be able. I'll try to explain each and everything about urticaria. Thank you for that. Wonderful, wonderful. So, Dr. Gupta, today we are going to talk about urticaria and its management. मुझे लगता है हम लोगों को हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए सबसे पहले इस बात की जरूरत है कि हम समझे कि urticaria क्या है. What is urticaria? Please explain. देखिए अर्टिकेरिया जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में हाइव्स और हिंदी में छपाके और दाफड़ भी बोलते हैं. बेसिकली अर्टिकेरिया इज नथिंग. ये हमारी बॉडी में कोई भी एक एलर्जन या किसी केमिकल का रिएक्शन होता है जो बहुत एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है. एक्यूट मतलब कि अभी एलर्जन हमारी बॉडी में आया तब रिएक्शन हो गया. क्रॉनिक का मतलब कि बहुत टाइम से वो हम उसको एक्सपोज हो रहे थे लेकिन वो रिएक्शन अभी शो की है हमारी बॉडी. ओके, तो इसमें क्या होता है, अर्टिकेरिया इज नथिंग बट इसमें पेशेंट हमारे पास आता है इंटेंस इचिंग. इचिंग इतनी ज्यादा होती है एंड प्लस रैशेस ऑल ओवर द बॉडी इंक्लूडिंग स्वेलिंग. ओके, स्वेलिंग जो होती है वो फेस पे हो सकती है, ओवर होल बॉडी हो सकती है. एंड जो रैशेस जिसे हम दाफड़ बोलते हैं वो लाल कलर के चकत्ते जैसे रैशेस होते हैं जो जिनमें से हीट निकलती है. सो इट्स अ वेरी एक्यूट कंडीशन जब पेशेंट हमारे पास आता है विच नीड्स टू बी ट्रीटेड वेरी वेल. Right. एंड So it's दाफड़ का कार. हाँ, बोलिए बोलिए. Yes, yes. So it's important to understand the seriousness of urticaria as well. तो ये तो urticaria होता है. अगर हम आगे मूव करें डॉक्टर, तो ऑफ कोर्स जैसा मेरे ख्याल से आप बोलने भी जा रही थी कि क्या कॉजेस हैं जिसकी वजह से urticaria होता है, क्यों होता है urticaria, प्लीज उस पर फोकस करते हैं. हाँ हाँ, देखिए दाफड़ का कारण सबसे पहले तो इन्फेक्शंस, नॉर्मल इन्फेक्शन जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही एक अर्टिकेरिया का कारण होता है. सेकेंड इज ड्रग. कोई भी हम मेडिसिन लेते हैं उसकी वजह से अर्टिकेरिया हो सकता है. देन थर्ड इज फूड इंड्यूस्ड.
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फूड इंड्यूस्ड, बिकॉज देर आर सो मेनी फूड जिनसे अर्टिकेरिया हो सकता है। एंड जो हमें अगर ऐसा होता है तो वी नीड टू सी कि हमें किस फूड से हो रहा है, एंड वी नीड टू कंट्रोल अवॉइड दैट फूड। ओके, देन अदर देन दैट स्ट्रेस से हो सकता है। देन अल्कोहल एंड स्मोकिंग आर अनदर वन। उसके अलावा कुछ अर्टिकेरिया होते हैं जिनका कुछ रीजन नहीं होता, विच मे बी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस वो होता है कि जो कुछ टाइम के लिए होता है, लाइक कुछ घंटे तक वो रह सकता है, एंड देन फिर वो अपने आप डिसअपियर कर जाता है। देन अनदर वन इंसेक्ट बाइट की वजह से भी हो सकता है अर्टिकेरिया। सो देर आर मेनी रीजंस, एंड अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी, लाइक ये थोड़ा सा सिवियर भी हो सकता है, बहुत ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं एंजियोएडिमा। वो एक्चुअली क्या होता है, उसके वो होता है हमारा सॉफ्ट टिश्यूज में, जैसे आंखों के आसपास, होठों के आसपास, तो प्राइवेट पार्ट्स में एक स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम एंजियोएडिमा बोलते हैं, जो बहुत लंबे समय तक भी रह सकती है अगर उसे ट्रीट ना किया जाए तो। सो बेसिकली यही सब कारण होते हैं अर्टिकेरिया के। बिल्कुल, तो बहुत सारे कारण हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ रीजन व्हिच कैन कॉज आर्टिकेरिया। फूड एलर्जी हो सकती है, मेडिकेशन से एलर्जी हो सकती है, इंसेक्ट स्टिंग होता है। आई थिंक देयर आर too many causes, too many reasons which can cause urticaria. तो अगर इनमें से कुछ भी symptoms आपको देखते हैं तो please go and consult your dermatologist before it becomes too late. ये भी हम जानना चाहेंगे डॉक्टर, आपने पहले हालांकि थोड़ा इस पे बात भी की कि किस तरह का दिखता है ये जो अर्टिकेरिया है या हाइव्स जिसे हम आमतौर पर कहते हैं, तो किस तरह से ये दिखता है और क्या ये एक एलर्जी है, इसे हम एक स्किन एलर्जी कह सकते हैं? देखिए, है तो ये एक अलर्जिक रिएक्शन स्किन का, बट इसको हम स्किन एलर्जी नहीं बोल सकते सिर्फ। मतलब स्किन एलर्जी होती है जो ट्रीट कर सकते हैं जल्दी से, बट अर्टिकेरिया होता है कि इसको तभी की तभी हमें ट्रीट करना जरूरी है, बिकॉज इट कैन बी सिवियर ऑल्सो। एज आई टोल्ड यू कि एक एंजियोएडिमा फॉर्म होता है, विच इज अ वेरी सिवियर फॉर्म इफ नॉट ट्रीटेड। एंड एक होता है सुपरफिशियल अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया हमें दिखता है लाल चकत्ते जैसे, जैसे कि मैंने पहले बताया, जिसमें बहुत सारी इचिंग होती है। तो जहां पे भी आप इच करोगे वहां पे लाल चकत्ते हो जाते हैं, जिसको हम डर्मोग्राफिज्म भी बोलते हैं। मतलब जहां पे आपने स्क्रैच किया वहीं पे एक रेड कलर की लाइन, हमारी बॉडी की रिएक्शन होता है, वो हो जाती है। ये बेसिकली यही होता है अर्टिकेरिया, और इसको ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर ये ट्रीट नहीं हुआ तो ये एंजियोएडिमा जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी हो सकता है, एंड इट मे कॉज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ऑल्सो। तो सांस लेने की दिक्कत भी हो सकती है इसके अंदर। राइट, तो अगर ये कैसा दिखता है, हाउ डज इट लुक लाइक, इस पर हम बात करें तो जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि वो रैशेस होते हैं, रेड कलर के होते हैं, थोड़े स्वेल्ड अप भी हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है, और जब हम उन्हें स्क्रैच करते हैं बिकॉज वो कंटिन्यूसली इच होता है, तो फिर उसमें हमारी स्क्रैचिंग के निशान बन जाते हैं, लाइंस उभर कर आ जाती है। तो ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो प्लीज उसे लाइटली ना ले, इज व्हाट वी आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू से। Doctor, you're also saying that it can be very severe, it can become very severe. So now we would like to know that how serious can an urticaria be? कितना serious हो सकता है और क्या ये life threatening हो सकता है? यस, अर्टिकेरिया लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। एज आई टोल्ड यू, वो एंजियोएडिमा जो होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में स्वेलिंग जाके कर सकता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने की दिक्कत हो जाती है, और उसके लिए फिर हमें स्टेरॉइड के इंजेक्शन एंड स्टेरॉइड्स का ट्रीटमेंट देना पड़ता है। सो व्हेनेवर आपको अर्टिकेरिया के सिम्टम्स दिखते हैं, आई डू टेल यू कि आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए टू गेट इट ट्रीटेड, बिकॉज ट्रीट तो ये कोई भी कर देता है, इवन जनरल फिजिशियन कैन ट्रीट इट। बट द थिंग इज, जो उसका कॉज है, बेसिक कॉज, वो आपको या तो एक एलर्जी स्पेशलिस्ट या एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही बता सकता है। राइट, तो सही ट्रीटमेंट हो इसके लिए जरूरी है कि पहले वो सही तरह से डायग्नोस हो पाए कि इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों आपको अर्टिकेरिया होते हैं, और फिर उस कॉज को भी ट्रीट करने की कोशिश की जाए, उसे भी कम करने की कोशिश की जाए। तो अगर हाइव्स हैं, अर्टिकेरिया है, प्लीज 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 इग्नोर मत कीजिए, गो एंड सी योर डर्मेटोलॉजिस्ट। आपने बताया डॉक्टर दो तरह के होते हैं, एक्यूट होते हैं, क्रॉनिक होते हैं। एक्यूट होता है जो कम जो जल्दी कमिंग पता चल नेचर, जाए या हाँ। कम उसके होते हैं, राइट, इंटेंसिटी के, एंड देन वो ठीक भी हो जाते हैं। क्रॉनिक आर्टिकेरिया या हाइव्स की अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं और क्या ये पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं? हाउ विल दे गो अवे कंप्लीटली?
कि दो तरीके के अर्टिकेरिया होते हैं। एक ये हम ड्यूरेशन के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, लाइक लेस देन 6 वीक्स एक्यूट अर्टिकेरिया, और अगर वो 6 वीक 6 हफ्ते से ज्यादा अगर प्रेजेंट करता है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक अर्टिकेरिया। क्रॉनिक अर्टिकेरिया के जो कॉजेज होते हैं उसमें मेनली जो कॉज होता है वो होता है एक कंटिन्यूअस एक्सपोजर ऑफ एलर्जन, जो हमारा या तो किसी खाने में हो सकता है, लाइक फूड इंड्यूस हो सकता है, देन या तो ऑक्यूपेशन रिलेटेड हो सकता है। ऑक्यूपेशन रिलेटेड लाइक आप किसी कोई केमिकल के एक्सपोजर में आ रहे हैं या किसी एलर्जन के एक्सपोजर में आ रहे हैं जो आपकी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, एंड वो बहुत लंबे समय तक आ रहे हैं। अब यू कैन नॉट लीव दैट ऑक्यूपेशन ऑल्सो, एकदम से आप ऑक्यूपेशन नहीं चेंज कर सकते, सो दैट कम्स इनटू द क्रॉनिक कैटेगरी। देन कुछ अर्टिकेरियाज होते हैं जो हीट और कोल्ड की वजह से होते हैं, लाइक ज्यादा टेम्परेचर हो या कम टेम्परेचर हो उसके कारण भी अर्टिकेरिया होते हैं। देन एक्वाजेनिक होते हैं, लाइक पानी से, तो आप बहुत टाइम तक आप पानी के कांटेक्ट के बिना नहीं रह सकते। तो क्रॉनिक अर्टिकेरिया को एक ट्रीटमेंट चाहिए होता है जो काफी लंबा चलता है, एंड मेन रीजन वही है कि आपको कॉज पता करना। अगर आपको कॉज पता है तो ऑब्वियसली यू विल ट्राई टू अवॉइड द कॉज, एंड उसके लाइक कांटेक्ट में आने से पहले यू नीड टू हैव सम एंटी एलर्जिक मेडिकेशन, बिकॉज जब भी वो कांटेक्ट में आएगा तो आपकी बॉडी एक रिएक्शन तो देगी विद इन द फॉर्म ऑफ अर्टिकेरिया और इचिंग। बिल्कुल। तो इस वजह से जो है क्रॉनिक आर्टिकेरिया का ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, लेकिन डेफिनेटली उसके चांसेस हैं कि वो ठीक हो जाएगा। पर हाँ, ट्रीटमेंट लंबा चलता है और सबसे जरूरी है कि हम ये डायग्नोस करें कि कॉज क्या है, मेन कॉज क्या है, उसे अवॉइड करने की कोशिश की जाए। I would also like to ask you, doctor, that what are the potential complications of urticaria if left untreated? कोई अगर इसे ट्रीट ही ना कराए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ना जाए, तो कितना ये भयानक हो सकता है और क्या पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? कि अगर अर्टिकेरिया ट्रीट ना हो तो वो फिर एक्यूट एक्सेसरबेशन हो सकते हैं अर्टिकेरिया के। एज आई हैव टोल्ड यू, लाइक वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट, लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके ब्रीदिंग डिफिकल्टी, देन राइनाइटिस, देन एस्थमा कॉज कर सकता है, विच कैन बी वेरी लाइफ थ्रेटनिंग। सो बेसिकली यही प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड ड्यू टू सिवियर रिएक्शन बॉडी में एकदम से इतना हिस्टामिन रिलीज होना, तो टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है जिसकी वजह से एनाफिलैक्सिस हो सकता है। तो हाँ, तो बेसिकली दीज आर वेरी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस इफ नॉट ट्रीटेड, और ये अगर एक्यूट हो जाता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। Right. So it's very important again that if you have hives, if you have urticaria, please go and consult your doctor. In this case, the dermatologist. Doctor, many a times it happens then whenever we see some, rashes on our body, even if it's urticaria or not, I mean, maybe we are not aware of it as a layman, but we think that it will go away with time, और हम उस पे कुछ होम रेमेडी करने की कोशिश करते हैं जिससे हमको रिलीफ मिले, और ऐसे में एक लंबा वक्त हम बिता देते हैं उसको खुद से ही सही होने देने के लिए या खुद से उस पे कुछ ट्रीटमेंट करके। क्या ये खतरनाक हो सकता है? यस, फॉर श्योर। पहली बात तो खुद से जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, होम रेमेडीज लाइक कपूर लगाना, ये टूथपेस्ट लगाना, एंड सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, ठीक है। लाइक होम रेमेडीज जो करते हैं लोग, खुद से टूथपेस्ट लगाना, कपूर लगाना, देन कोकोनट ऑयल लगाना, ये सब बॉडी पे लाइक खतरनाक हो सकता है। ऑब्वियसली वो एक इरिटेशन रिएक्शन कॉज कर सकता है हमारी स्किन पे। तो बेसिकली अगर हमें अर्टिकेरिया का ट्रीटमेंट करना है तो हमें जरूर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट योर क्वेश्चन, आई सॉरी। No, I wanted to ask कि हाँ, कई सिंपल बार ऐसा रैश। होता है कि हम खुद से ही बहुत टाइम हाँ लगा देते हाँ हैं और ऐसे में हाँ, बहुत सारा वक्त बीत जाता है, तो वो सॉरी। कितना हाँ खतरनाक हो हाँ, सकता मेन मेन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, एक तो ये सिंपल रैश नहीं होता। है? सिंपल रैश और अर्टिकेरिया के जो रैश होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अर्टिकेरिया के रैश में आपको इंटेंस इचिंग होती है, सो इट विल मेक यू लीड कि आप कोई मेडिसिन ले, वो ऐसे अपने आप से नहीं जाएंगे। ठीक है ना, तो अगर आपने कुछ लाइक होम रेमेडी उस पे किया तो वो और बर्निंग या इरिटेशन आपको कर सकता है, तो वो तो ना ना करे। तो बेसिकली क्या होता है कि खुद की सेल्फ मेडिकेशन से भी ये सबसाइड तो कर जाते हैं, बिकॉज एंटी एलर्जिक मेडिसिन एवरीबडी नोज दैट, हम्म। तो दे हैव एट देयर होम, तो वो सबसाइड कर जाता है।
बट ऐसा नहीं है कि वो सबसाइड कर गया, इट हैज सबसाइडेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट इट विल अगेन रीअपियर बिकॉज हमें अभी तक कॉज नहीं पता कि वो एलर्जिन क्या था जिसकी वजह से वो रिएक्शन हुआ था. सो बेसिकली द कॉज नीड्स टू बी रूल्ड आउट by a proper history which can be done by the perfectionist maybe. Right. So So it's important that we rule out the main cause of, whatever is causing the urticaria in an individual. और उसके लिए जरूरी है सही डायग्नोसिस, और वो आप घर पे नहीं कर पाएंगे. सेल्फ मेडिकेशन से आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल सकता है, लेकिन वो इसलिए भी खतरनाक हो सकता है क्योंकि अगर आप टाइमली डॉक्टर के पास चले जाए तो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है, कॉजेस डायग्नोस हो सकते हैं. लेकिन अगर आप खुद से ही खुद को आराम देने की कोशिश करेंगे, सेल्फ मेडिकेशन में वक्त जाया करेंगे, तो शायद थोड़ी बहुत देर हो जाएगी डॉक्टर तक पहुंचते पहुंचते. और ऐसे में अगर वो वापस आता रहा क्योंकि आपने कॉज तो डायग्नोस किया नहीं है, तो वो खतरनाक हो सकता है. इसलिए again we are requesting you in a way that please go and consult your dermatologist if you have hives. ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या स्ट्रेस की वजह से भी आर्टिकेरिया होता है, और अगर होता है तो हाउ डू स्ट्रेस आर्टिकेरिया लुक्स लाइक, क्या होता है स्ट्रेस आर्टिकेरिया? stress urticaria is basically nothing but a continuous stress जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते रहते हैं लाइक हिस्टामिन एंड ऑल. इसमें क्या होता है, मेनली आपको रैशेस कम होते हैं, इंटेंस इचिंग एक होती रहती है कंटिन्यूअसली which is related to the stress. Okay, so that is the stress urticaria and it basically subsided on anti-allergic medication. एंटी मेडिकेशन पे सबसाइड कर जाता है बट इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम. तो उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. इसलिए लाइक हम हर पेशेंट को बोलते हैं लाइक आप मतलब आई तो एडवाइज एवरी पेशेंट डू कम टू मी फॉर एक्ने और सोरियासिस और एनी अदर कंडीशन इंक्लूडिंग अर्टिकेरिया कि आप एक्सरसाइज करो, थोड़ा टाइम निकालो 15 to 20 minutes ऑफ योर डेली रूटीन. तो आप एक्सरसाइज करो थोड़ा सा या योगा करो जिससे आपका थोड़ा सा ना स्ट्रेस लेवल मेंटेन रहे, कॉर्टिसोल लेवल मेंटेन रहे, जिसकी वजह से ये अर्टिकेरिया या जो बाकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी ना हो. दैट इज द मेन. राइट. तो हम जानते हैं कि स्ट्रेस की वजह से सिर्फ आर्टिकेरिया नहीं, ऐसी तमाम चीजें हैं जिसकी वजह स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस कंट्रोल करना, स्ट्रेस को कम करना, डी स्ट्रेस करना खुद को बहुत जरूरी है. तो जैसा कि डॉक्टर गुप्ता ने कहा है, अपने लिए थोड़ा वक्त निकालिए, डू एक्सरसाइज रेगुलरली इन व्हाटएवर फॉर्म. आपको जो भी पसंद है, ब्रिस्क वॉकिंग पसंद है, जॉगिंग पसंद है, जिमिंग पसंद है, या आपको क्रॉसफिट पसंद है, एरोबिक्स पसंद है, योग पसंद है, पर करिए जरूर. ये आपको स्ट्रेस फ्री रखेगा और स्ट्रेस से जो भी परेशानियां हो सकती हैं उनके रिस्क को भी कम करेगा. कई बार पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं डॉक्टर कि हाइव्स या आर्टिकेरिया नाइट में बहुत तकलीफदायक हो जाता है. तो व्हाई डू दीज हाइव्स ऑफ आर्टिकेरिया गेट वर्स एट नाइट? इसका कोई पर्टिकुलर रीजन? सी नाइट में क्या होता है ना, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, सो हमारा माइंड जो है वो एक ही जगह लगा होता है, मतलब कहीं और नहीं होता. सो एट दैट टाइम हमारा जो ध्यान है वो इचिंग पे ज्यादा जाता है. एंड इचिंग की एक इच साइकिल होती है. द मोर यू इच द मोर इचिंग गेट्स वर्सन. तो वो एक रीजन होता है कि नाइट में लोगों को सिम्टम ज्यादा लिखते हैं. बट अगर नाइट में इचिंग ज्यादा है तो फिर अर्टिकेरिया के अलावा भी अलग रीजंस होते हैं लाइक स्केबीज होता है which needs to be ruled out in these particular patients. So राइट. तो चूंकि ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते रात में या दिन के वक्त, हम प्री ऑक्युपाइड होते हैं, हमारे पास काम होता है, हम वर्क प्लेस पे होते हैं, घर पे भी होते हैं तो बिजी होते हैं, तो इसलिए शायद उतना वक्त नहीं होता. लेकिन रात में चूंकि डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते तो ऐसा लगता है कि आर्टिकेरिया वर्स हो गया है. ऐसा होता नहीं, और कंटिन्यूअसली हम उसे इच करते रहते हैं तो स्ट्रेस भी बढ़ता है, डिस्कम्फर्ट लेवल भी बढ़ता है. इसलिए बहुत जरूरी है कि आप टाइमली डॉक्टर से जरूर संपर्क करें. डॉक्टर, डज आर्टिकेरिया मेक्स अ पेशेंट टायर्ड? yes, because itching में जो होता है ना आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, so that makes a patient tired. ओके. अच्छा, कई बार आपने भी ये नोटिस किया होगा जब पेशेंट आपके पास आते हैं आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम लेकर, खासकर क्रोनिक आर्टिकेरिया के केस में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ दिनों में उन्हें आराम मिल गया, तो वो उनको लगता है कि बस हो गया, मैं अब ठीक हो गया हूँ और ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, तो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए वो दवाइयां लेना बंद कर देते हैं. फिर अगर हो सकता है 2-3 महीने में, 1 साल में फिर से उनको प्रॉब्लम हो, तो उनके पास प्रिस्क्रिप्शन तो है ही, वो फिर से दवाइयां लेंगे, फिर से रिलीफ मिल गया, सही हो गए. तो ये करना क्या सही है या इसके कुछ और consequences हो सकते हैं?
ऐसे बहुत से केसेस हैं मेरे पास जो आते हैं ऑन रेगुलर बेसिस पे नहीं आते, वो सिर्फ तभी आते हैं व्हेन दे गेट, जब उनको रिलीफ नहीं मिलता, बिकॉज दे सेड कि हमने लास्ट टाइम जो आपने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी वी टुक दैट मेडिसिन। और यस दिस इज वेरी हार्मफुल बिकॉज जब हमारे पास एक्यूट अर्टिकेरिया का पेशेंट आता है वी गिव देम स्टेरॉइड्स देते हैं हम उन्हें। स्टेरॉइड्स थोड़ा वो हायर डोज में होते हैं, और अगर वो स्टेरॉइड्स को ऐसे सेल्फ मेडिकेट करते रहेंगे, इफ दे वोंट टेक द प्रॉपर डोजेज ऑफ द मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर सिम्टम्स, तो ऑब्वियसली दिस वुड बी डेंजरस। आपको पता ही है, सबको ही पता है स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स। सो people know better than us about steroids, so yes they are very harmful. The irony is that people do know the harmful effects of steroids, लेकिन फिर भी कई बार हम ये गलती करते हैं, या तो सेल्फ मेडिकेशन में ही हम steroids based मेडिकेशन लेने लग जाते हैं, भले ही हमारे पास कोई पुराना प्रिस्क्रिप्शन रखा हो तो उसके आधार पर ही, या फिर ये जो गलतियां हैं ये बहुत भारी पड़ जाती हैं कई बार। तो इसलिए जरूरी है कि हम डॉक्टर की सलाह पर ही काम करें, और जो भी ट्रीटमेंट का कोर्स है उसे पूरा करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, क्रोनिक आर्टिकेरिया जाने में क्या कभी-कभी बहुत लंबा वक्त लग जाता है, और ऐसे में जो ट्रीटमेंट है उसे कंप्लीट करना, उसके कोर्स को कंप्लीट करना बहुत जरूरी हो जाता है, तो क्या वहां पर भी आप लगातार पेशेंट को बोलते रहते हैं कि बीच में मत छोड़ो वरना दिक्कत हो जाएगी आगे? यस, क्रॉनिक अर्टिकेरिया कुछ पेशेंट्स में जिनमें कॉज नहीं पता चल पाता उनको बहुत टाइम लग जाता है। आई हैव 2-3 पेशेंट्स जिनको लाइक ऑलमोस्ट लाइक 2-3 इयर्स से ऊपर हो चुका है। सो बेसिकली क्या होता है ना, इन पेशेंट्स को हम ज्यादा स्टेरॉइड नहीं दे सकते, बट वी नीड टू पुट इट ऑन सम मेडिसिन जिनके उनके बॉडी का इंफ्लेमेशन थोड़ा कंट्रोल में रहे। सो इट इज वेरी डिप्रेसिंग फॉर द पेशेंट पार्ट, यस, कि वो इतने टाइम से मेडिसिन ले रहा है फॉर अ सिंपल थिंग, बट वही है कि वो जरूरी है उसकी पार्ट के लिए ही, जब तक कॉज नहीं पता चलेगा वी कैन नॉट स्टॉप दैट। Right. So important is that A, you consult a dermatologist as soon as possible if you are experiencing anything closer to urticaria or hives. B, trust your doctor and complete the course of the treatment. That's very important. Doctor, initially हमने इस बारे में बात की थी कि फूड से भी एलर्जी हो सकती है, और फूड एलर्जी की वजह से भी आर्टिकेरिया या हाइव्स हो सकते हैं। Dietary precautions की अगर हम बात करें, any do's and don'ts for patients of urticaria or to avoid urticaria at the very first place? सी, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो फूड से एलर्जी, जो हम ऑलमोस्ट मोस्टली पेशेंट्स में करते हैं, ठीक है, तो उनको मैं कुछ प्रिकॉशंस बताती हूँ, लाइक फूड्स टू अवॉइड, वो मैं आपको बता देती हूँ। लाइक राइस, राइस से अर्टिकेरिया होता है। देन छोटे बीज वाली जो सब्जियां होती हैं, जैसे बैंगन हो गया, भिंडी हो गई, टमाटर हो गया। देन बीज वाले फ्रूट्स हो गए लाइक स्ट्रॉबेरीज, ओके, देन वाटरमेलन, इससे अर्टिकेरिया होता है। देन उसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स हो गए लाइक लेमन हो गया, देन ऑरेंजेस, देन मौसमी, ये सब थोड़ा सा अवॉइड। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो पैकेट वाले फूड्स होते हैं जिनमें कलर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अर्टिकेरिया, उनसे अर्टिकेरिया बहुत जल्दी होता है। सो वो तो मतलब बिल्कुल अवॉइड करें। सो दीज आर सम फूड्स विच दे शुड अवॉइड। अलॉन्ग विद दैट, जो सी फूड लेते हैं, हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो खैर इतना कॉमन नहीं होता, बट हाँ जो सी फूड लेते हैं उनके लिए भी लाइक सी फूड से एलर्जी हो सकती है। एंड अदर देन दैट, ड्राई फ्रूट्स में लाइक आलमंड्स हो गए, देन नट्स हो गए, पीनट्स वगैरह, दे मे कॉज। ओके, तो ये डाइटरी प्रिकॉशंस रखे ही जा सकते हैं, और कई लोगों को खुद से पता होता है कि उन्हें एक पर्टिकुलर फूड आइटम से, फूड इंग्रेडिएंट से एलर्जी है। जैसे उन्होंने कभी एग खाया तो उन्होंने नोटिस किया कि अच्छा, एग खाने के बाद मुझे ये प्रॉब्लम होती है, या फिर सी फूड के केस में, या दूसरी तमाम चीजों में, ड्राई फ्रूट, कैश्यू नट्स एक्सेट्रा। तो ऐसे में क्या उन्हें अवॉइड करना चाहिए उसे खाना भी? यस श्योर, एग से होती है एलर्जी, जरूर करना चाहिए। आई डू टेल माई पेशेंट्स कि इसको पूरी तरह स्टॉप कर दें अभी तो फिलहाल, देन एक एक करके फूड अपने डाइट में इंक्लूड करें। इफ दे डोंट नो कि उनको किस चीज से एलर्जी हो रही है, तो धीरे धीरे उनको पता चलता रहता है कि हाँ इससे एलर्जी हुई थी, इससे नहीं हुई थी। सो दैट इज द थिंग, तो उस हिसाब से वो अवॉइड करना स्टॉप कर देते हैं। फेयर इनफ। डाइटरी प्रिकॉशंस पर हम बात कर रहे हैं, और इसी लाइन पे क्वेश्चन हमारी व्यूअर पूछ रही हैं, सोनिया सिंह है, पूछ रही है, मैम क्या डाइट लेनी चाहिए जिससे स्किन ग्लो करे और एलर्जी भी ना हो सके?
सी एलर्जी ना हो सके ऐसा पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज कोई भी कॉस्मेटिक या कोई भी एनीथिंग विच वी टेक इनसाइड और विच वी अप्लाई ओवर द स्किन, तो हमारी बॉडी पे एलर्जी होने के चांसेस हैं। एंड ऑलमोस्ट 20% ऑफ द पेशेंट अपनी लाइफ टाइम में कभी ना किसी एलर्जी के शिकार होते ही हैं। सो कंप्लीट अवॉइडेंस ऑफ एलर्जी इज नॉट पॉसिबल। वो आपकी अंदर लाइक जेनेटिकली डिटरमाइंड ही होता है कि आपकी बॉडी जो है वो एलर्जी प्रोन है या एलर्जी प्रोन नहीं है। सो वी कैन नॉट आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट मच। बट हाँ, डाइट जो लेनी चाहिए आपको स्किन ग्लो के लिए, आई टेल यू, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह आप ले सकते हो, विटामिन सी रिच फ्रूट्स लाइक आंवला वगैरह ले सकते हो। देन I as I told you, lemon is a good source of vitamin C, then amla is a good source, वो आप ले सकते हैं। then drink lots of water, then fruits, eat lot of fruits and vegetables, ठीक है। avoid oily fried foods, तो and avoid smoking and alcohol, so इससे आपकी skin glow करेगी, that's fair enough। and with that if you exercise daily, you'll get a good skin apart from Okay. your basic skincare routine, yeah। Right. So a basic skincare routine is essential. You need to have a good, intake of fresh vegetables, fruits, vitamin C rich fruits, etc. Plus, you need to exercise, you need to work out, you need to sweat it out. That's the mantra. Doctor, I would also like to ask you that is urticaria contagious? क्योंकि skin के allergy की जब भी हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि अरे उससे हमें हो जाएगा। तो urticaria के केस में ये कितना सही है? नहीं, अर्टिकेरिया इज नॉट कंटीजियस। अर्टिकेरिया ऐसा नहीं है कि अगर मुझे अर्टिकेरिया हो रहा है तो आपको भी हो जाएगा अगर आप मेरे पास बैठे हो तो। बिकॉज हर एक का जो रिस्पॉन्स होता है, बॉडी रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक एलर्जन, वो डिफरेंट होता है। तो कोई एलर्जन मेरी बॉडी में बहुत जल्दी एलर्जी करता है, वो आपके में नहीं कर सकता, और कोई कोई एलर्जन आपकी बॉडी में एलर्जी कर सकता है, मेरी बॉडी में नहीं कर सकता। सो दैट इज टोटली डिफरेंट। Right. So urticaria is not at all contagious. तो बिल्कुल मत घबराइए, अगर किसी और को हुआ है तो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाइए, ये ज्यादा जरूरी है उससे भेदभाव या दूरी बनाने के। एक और चीज डॉक्टर, पिछला 2-2.5 साल जो हमने देखा कोविड एरा जिसे हम कहते हैं, उसमें कई पेशेंट्स ने इस शिकायत की कि कोविड के बाद उनके चेहरों पे हाइव्स हुए। तो कैन कोविड कॉज हाइव्स ऑन फेस? कोविड के बाद नहीं, ये कोविड वैक्सीनेशन एक मेन कॉज लगा लो। बट हाँ, लाइक कोविड वैक्सीनेशन के बाद मेरे पास काफी पेशेंट्स आए हैं जो कंप्लेन करते हैं कि मैंने वैक्सीनेशन लिया और उसके बाद से मेरे को ये हाइव्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। सो मे बी देयर वाज सम एलर्जन इन कोविड वैक्सीन और समथिंग लाइक दैट, तो उसके कारण है कोविड। बट कोविड के कारण आज सच कोई एलर्जन नहीं। ओके। और वैक्सीन की वजह से भी अगर हुए हैं तो वो अपने आप चले भी वो जाएंगे, ठीक ट्रीटेबल भी है, हुए। हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल, तो उसको लेकर ट्रीटेबल है। घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी बिकॉज जरूरी है। हाँ, बिकॉज आप वैक्सीन डेली नहीं लेते। वैक्सीन आप जब भी लेने जा रहे हो, अगर आपको थोड़ा बहुत एलर्जी हुआ भी है, तो यू कुड टेक एन एंटी एलर्जिक मेडिसिन बिफोर हैंड बाय आस्किंग योर डॉक्टर, एंड देन गो फॉर मेडिकेशन। तो उससे आपका जो बॉडी का जो रिस्पॉन्स आएगा एलर्जी के लिए वो कम आएगा। Exactly. So that's the way. Please go and get vaccinated against COVID. अगर अभी तक नहीं किया है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो पहले आप डॉक्टर से उसको लेकर डिस्कस भी कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हम ले लेंगे हमारे व्यूअर्स के। संजीव पांडे है, पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन acute urticaria and chronic urticaria? इस पर हम बात कर ही चुके हैं। साथ ही साथ वो पूछ रहे हैं प्लीज सजेस्ट बेस्ट एंटीसेप्टामाइन। एंटीसेटामिन, ANTISITAMIN. एंटीसिटामिन, सॉरी आई डिडंट गेट दिस क्वेश्चन, सॉरी। ओके संजीव, अगर आप देख रहे हैं अभी भी तो फिर से आप एंटीहिस्टामिन, ओके, एंटीहिस्टामिन, ओके। ओके, ओके, ओके। सी, एंटीहिस्टामिन एक्चुअली बहुत सारे होते हैं। आई कैन नॉट टेल यू कि एक ही आप ले सकते हैं, ऐसे कोई बेस्ट नहीं होता। बेस्ट इज व्हाट एक्ट्स ऑन योर बॉडी, जो आपकी बॉडी पे अच्छे से काम कर जाए, दैट इज बेस्ट फॉर यू। ओके, सो फॉर मी जो मैं पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करती हूँ, लीवोसिट्राजिन इज गुड, देन डीलोराटिडीन इज गुड, देन आजकल बिलास्टीन एंड फिक्सोफेनाडिन। So fexofenadine is also good and bilastine is also good. So you can take any of these. All of them control the symptoms of urticaria and allergy. But ऐसे कोई बेस्ट नहीं है। बेस्ट और सस्ता सबसे ज्यादा है लीवोसिट्राजिन, वो तो आप ले ही सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। So do we need doctor's prescription before going for it, or we can just go and buy it?
सी वैसे तो हमारी कंट्री में सब कुछ मिल जाता है वो तो नहीं, लीवोसिट्राजिन इज क्या सही अवेलेबल। होगा? क्या सी सही होगा? सी इफ यू आर टेकिंग एनी मेडिकेशन आई एडवाइज कि आप हमेशा डॉक्टर की सलाह लें। राइट। बट फॉर इमरजेंसी के लिए आप एक लीवोसिट्राजिन टैबलेट रख सकते हो अपने पास। So if any allergy and to anything, so you can take one levocetirizine that won't do any harm, and you may consult your doctor after that. That's me. ओके। हाँ, सलोनी मेहता पूछ रही हैं, which mechanisms activate histamine in the pathophysiology of urticaria? ओके। सी टिकेरिया होता है एक्चुअली हमारी स्किन में, अगर कोई बॉडी में कोई एलर्जन आता है बाहर से, तो हमारे स्किन में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मास्ट सेल्स। ठीक है, तो वो जब एलर्जन के संपर्क में आते हैं ना, तो वो कुछ केमिकल्स निकालते हैं जिनको हम हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स और सेरोटोनिन्स बोलते हैं, जिनकी वजह से स्किन पे चकत्ते और ये एलर्जी होती है, जिसे हम अर्टिकेरिया बोलते हैं। ओके। साक्षी शर्मा है, पूछ रही है, मैम एलर्जी लाइफ टाइम तक रहती है क्या? मतलब बहुत लंबे समय तक मेडिसिन लेनी होगी क्या? It can be, it can be not. It depends on individual to individual. जरूरी नहीं है, सबकी बॉडी अपने हिसाब से रिएक्ट करती है। तो अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो हाँ वो रह सकती है, अगर हमें कॉज नहीं पता चले। तो अगर कॉज पता चल जाता है तो काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। सो दैट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी। बिल्कुल साक्षी, हम सब इंडिविजुअल है, हम सब अलग है। भले ही आर्टिकेरिया 10 लोगों को हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको एक ही वजह से हुआ होगा। सबको अलग अलग रीजन से आर्टिकेरिया हो सकता है। तो ऐसे में जो मेडिकेशन है या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो भी सबका अलग होगा, और एक डॉक्टर ही, एक एक्सपर्ट ही इस पर बेहतर आपको राय दे पाएंगे। आकांक्षा सिंह है हमारे साथ, पूछ रही है, व्हाट शुड आई डू व्हेनेवर आई गेट इचिंग ऑन माय पाम फॉर नो रीजन? मॉइस्चराइजर, अप्लाई मॉइस्चराइजर फर्स्ट, एंड उससे भी अगर इचिंग नहीं जाती देन आप एक लीवोसिट्राजिन टैबलेट ले सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता, प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। ओके। शुभम मारन है, पूछ रहे हैं कि व्हाट इज आर्टिकेरिया? शुभम, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, वी आर कंटिन्यूअसली डिस्कसिंग इट। उनका सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, व्हाट अदर कंडीशंस डज इट रिजेंबल? व्हाट अदर कंडीशन? सी, ये रिजेंबल बहुत कुछ कर सकता है, लाइक टीनिया को भी रिजेंबल कर सकता है। बट द थिंग इज, अर्टिकेरिया के जो रैशेस होते हैं वो बहुत ही टिपिकल और पेक्यूलियर होते हैं। जहां भी आप इचिंग करोगे वहां पे एक बॉडी का रिएक्शन होगा, लाल कलर के दाफड़ हो जाते हैं वहां पे। दाफड़ मतलब एक स्किन में स्वेलिंग सी हो जाती है और लाल कलर का लीजन हो जाता है, जिसका कोई बॉर्डर भी नहीं होता पूरी तरीके से। तो और आप उसको अगर टच करेंगे तो उसमें से हीट जैसा निकलता है। सो दिस इज अर्टिकेरिया। सो अगर आपको ऐसा कभी हो रहा है तो प्लीज अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, प्रेफरेबली डर्मेटोलॉजिस्ट। एग्जैक्टली exactly. तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि जो भी रैश या हाइव्स हो रहे हैं वो क्या है, आर्टिकेरिया है या कुछ और है, तो जैसे कि डॉक्टर ने कहा, बेस्ट वे आउट इज टू गो एंड कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम सिटिंग एंड अज्यूमिंग कि ये क्या हो सकता है। प्लीज एंड गो एंड चेक विद योर डॉक्टर, दैट्स इंपॉर्टेंट। डॉक्टर, अब हम थोड़े ट्रीटमेंट ऑप्शंस पर भी बात करना चाहेंगे, और ट्रीटमेंट ऑप्शंस पर आने से पहले मैं जानना चाहूंगी, आमतौर पर लोगों को ये लगता है कि किसी भी दिक्कत को लेकर अगर वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले बहुत सारे टेस्ट करवाए जाते हैं। तो क्या आर्टिकेरिया के केस में भी लैब टेस्ट होते हैं, या हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन से ही हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस पर आ सकते हैं? नहीं, अर्टिकेरिया के केस में जरूर लैब टेस्ट होते हैं। मेन टेस्ट होते हैं सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिससे हमें पता चलता है अगर इयोसिनोफिल रेज्ड है तो बॉडी में ऑब्वियसली कुछ एलर्जिक कंपोनेंट है। एंड अगर इयोसिनोफिल रेज है तो हमें अदर फॉर्म्स ऑफ एलर्जी लाइक एलर्जिक राइनाइटिस और एलर्जी अस्थमा भी रूल आउट करना होता है। देन ईएसआर, अगर ईएसआर रेज है तो वो सजेस्ट करता है कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम जैसे एच पाइलोराई वगैरह हो सकता है, तो उसके लिए भी हमें मेडिकेशन देनी होती है। देन एक दूसरा टेस्ट होता है सीरम आईजी लेवल, तो वो हम टेस्ट कराते हैं। इफ इट इज रेज्ड तो फिर हम स्किन एलर्जी टेस्ट के लिए रिकमेंड करते हैं। ओके, तो ये तमाम लैब टेस्ट है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस की। क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है? सी, ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर मेनी। ओरल ट्रीटमेंट एंड टॉपिकल ट्रीटमेंट, पहले तो हम वही देखते हैं कि एक्यूट है या क्रॉनिक है। उसके बाद सबसे पहला देखते हैं अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस, लाइक जैसे मैंने बोला फूड्स, कुछ फूड्स
देन अगर डाई से भी होता है कुछ लोगों को, जो डाइस लगाने के लिए मना करते हैं. देन कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ सॉसेस आती हैं जैसे आजकल प्रिपेयर्ड सॉसेस, तो उनको खाने के लिए मना करते हैं. देन उसके अलावा अगर ऐसा लग रहा है कुछ ड्रग इंड्यूस्ड है, तो जो दवाइयां अगर वो कुछ ले रहा है और उसकी वजह से उसे अर्टिकेरिया हो रहा है, तो उसको भी हम खाने के लिए मना करते हैं. देन देर आर सम एंटी एलर्जिक मेडिकेशन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइक लीवोसिट्राजिन, जिसको हम एंटीहिस्टामिनिक्स बोलते हैं, लाइक फेक्सोफेनाडेन, लीवोसिट्राजिन, देन डी लोराटिडीन और बिलास्टिन के फॉर्म में हम दे सकते हैं. देन पहले कुछ मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, कुछ ड्रग्स होते थे, उनको भी हम यूज करते थे. देन स्टेरॉइड्स, एक्यूट अर्टिकेरिया के केसेस में हम थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए स्टेरॉइड्स भी देते हैं. देन एंटी आईजी मेडिकेशन होती है जिसमें हम ओमालिजुमैब बोलते हैं, वो भी हम किसी किसी पेशेंट्स में स्टार्ट कर सकते हैं. So there are many multiple options. Then other than that, topical option, again, if it is a very mild urticaria, तो oral and like oral तो antihistaminic देना ही होता है. Then topical like Acarax lotion और some calamine lotion, तो उससे भी ठीक हो जाता है काफी. Remoxin containing lotions आते हैं कुछ, उनसे भी काफी हद तक रिलीफ मिल जाता है. बिल्कुल, तो बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. बस करना ये है, अगर अर्टिकेरिया, हाइव्स कुछ भी दिख रहा है, सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, प्लीज गो एंड चेक विद योर डॉक्टर. कुछ और व्यूअर्स के क्वेश्चंस हम ले लेते हैं. शिवानी मिश्रा है, पूछ रही हैं, गुड इवनिंग मैम, व्हाट टिप्स डू यू हैव फॉर हाइव्स और एनी अदर स्किन रिलेटेड एलर्जीज? See, hives और skin related allergies होते हैं. Hives is totally different, और जो other allergies होती हैं वो थोड़ा सा अलग होती हैं इनसे. ठीक है, तो इनमें बेसिकली इचिंग होती है सबसे पहली बात, और इचिंग के बाद रैशेस होते हैं. So my advice is always consult your dermatologist for the same, because they can treat you very well. मतलब वो अच्छे से आपको treat करेंगे and they'll find out the cause of your allergy, which is very important. So please go and meet your dermatologist. Right. पारुल शिंदे हैं, पूछ रही हैं कि what pre-hospital care should be given for urticaria if anaphylactic shock is suspected? See, if anaphylactic shock is suspected, तो as such hospital care में rest होना चाहिए, वो which is very important. And उसमें हम like adrenaline के shots देते हैं. Adrenaline is the drug of the choice. Then उसके अलावा steroids का कुछ course चलाते हैं, like short course of steroids. And other than that, rest, उसमें recover हो जाता है, कोई इतना issue नहीं. हाँ, पारुल ये भी जानना चाहती थी कि हॉस्पिटल जाने से पहले ही अगर किसी को ये शॉक हो रहा है, ये अटैक आया है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? It cannot be treated at home. सॉरी, ये तो आप हॉस्पिटल, सबसे पहले आपको हॉस्पिटल, नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, सो दैट पेशेंट एक बार स्टेबलाइज हो जाए, देन उसके बाद आप कर सकते हैं. एलर्जीज के कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कई बार डॉक्टर जो है ये बोलते हैं कि पेशेंट को अपने पास, अगर बहुत ही क्रॉनिक केस है या इस तरह की जरूरत हुई, कि अपने पास कुछ टैबलेट रखे और फैमिली को भी बताकर रखे कि ये दिक्कत है, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो मैं ले लूं. इस तरह की चीज अर्टिकेरिया में भी हो सकती है क्या? Yes, as I told you ना, एंटी एलर्जिक मेडिकेशन हम लाइक पेशेंट्स को पता ही होता है, एंड वो हम पहले से ही बोलते हैं, बिकॉज ये अर्टिकेरिया अगर किसी को एक बार हो गया तो वो दोबारा भी हो सकता है. सो यस, एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस नीड्स टू बी केप्ट एट होम, और मतलब हमेशा रखनी चाहिए, बिकॉज ये उसको एलर्जी अगर दोबारा होगी तो वो दोबारा परेशान होगा. तो ही नीड्स एटलीस्ट एक मेडिसिन उस टाइम पे ले ले ताकि थोड़ा रिलीफ मिल जाए, एंड देन वो अपने डॉक्टर को जाके कंसल्ट करे. ऑलराइट. प्रिया अग्रवाल है, हालांकि जो क्वेश्चन वो पूछ रही है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार ये पॉइंट रेज करती हूँ. हाउ इज फिजिकल अर्टिकेरिया कैरेक्टराइज्ड? सी, फिजिकल अर्टिकेरिया बहुत तरीके के होते हैं, लाइक ऑक्यूपेशन रिलेटेड होते हैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. देन हीट एंड कोल्ड अर्टिकेरिया होते हैं जो टेम्परेचर की वजह से होते हैं. देन एक्वाजेनिक होते हैं. एक्वाजेनिक इज ड्यू टू वाटर, तो लोगों को नहाने के बाद भी इचिंग होती है काफी लोगों को, तो दैट इज ऑल्सो एन अर्टिकेरिया. देन सोलर अर्टिकेरिया, सन एक्सपोजर की वजह से अर्टिकेरिया होता है. देन प्रेशर अर्टिकेरिया, प्रेशर अर्टिकेरिया लाइक स्किन पे आपने कुछ भी प्रेशर दिया तो उसके कारण अर्टिकेरिया हो जाता है. अदर देन दैट, एक होता है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अर्टिकेरिया और कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया जिसे बोलते हैं. तो लाइक आपने एक्सरसाइज की एंड देन उसके बाद आपको इचिंग स्टार्ट हुई. सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अर्टिकेरिया.
Okay. And Doctor, what would you like to advise to our viewers as a takeaway message? क्या आप कहना चाहेंगे हमारे viewers को? See, I request everyone कि आप अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करें. अगर आपको स्किन में कोई भी एलर्जी या स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज उसको सेल्फ मेडिकेट ना करें, बिकॉज सेल्फ मेडिकेट कैन बी वेरी डेंजरस. और स्किन आपका लार्जेस्ट ऑर्गन होता है बॉडी पे, राइट? तो उसको उसको प्लीज ऐसे एक्सपेरिमेंट ज्यादा ना करें अपनी स्किन पे. योर डर्मेटोलॉजिस्ट और योर डॉक्टर नोज बेटर देन यू. एंड हाँ, एक जो मैं सीरियसली अपने लोगों को बोलना चाहती हूँ वो है स्टेरॉइड्स का यूजेज. जो ये बेटनोवेट और टीनोवेट क्रीम जो फेस पे लगाते रहते हैं रेगुलरली, प्लीज वो ना करें, बिकॉज आई एम सीइंग कंटिन्यूअसली सीइंग सो मेनी पेशेंट्स रेगुलरली जिनकी स्किन पूरी खराब हो जाती है, एंड विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ट्रीट ऑल्सो. So please don't do that. Right, self medication can be very very dangerous. अभी भले ही थोड़ा बहुत रिलीफ आपको मिल रहा हो उससे, लेकिन आगे जाके आप नहीं जानते कि उसके क्या कंपोनेंट्स है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, स्टेरॉइड्स है या नहीं है. और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, भले ही वो वही चीज आपको प्रेस्क्राइब करे, लेकिन उनको एग्जैक्ट डोसेज पता होता है. तो प्लीज बी वेरी केयरफुल. डोंट गो फॉर सेल्फ मेडिकेशन. दैट कैन बी वेरी डेंजरस. और वहां से फिर ट्रीटमेंट जब शुरू होता है या वापसी की राह जो है वो बड़ी मुश्किल नजर आती है. तो डोंट do that mistake. Thank you so very much, Dr. Akriti Gupta, for your Thank, valuable time. It has thank been you, a very Sayaka. very informative session for our viewers, and I'm sure now they will use this information to prevent themselves and their near and dear ones from getting urticaria. And in case if they get to see such symptoms, they now know that instead of self-medication, it's always better to approach a nearby dermatologist. It was great hearing you, and we really look forward for many more such sessions in coming times with you for our viewers. Thank you so very much. Thank you, Sayaka. Thank you very much. And we would also like to thank our viewers for your active participation in today's session. And to get latest updates on how to keep your skin healthy, do like and follow our FB page, All About Skin Allergy. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you. Goodbye. Good day.